Assalamu alaikum students. Today we are doing exercise number 9.2 which is at page number 178. Its question number 1 is show whether the points with vertices 5 comma minus 2, 5 comma 4 and minus 4 comma 1 are vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle. Students, in this question, you have to find about the type of triangle, which type of the triangle is this one from these vertices. Okay, so they don't give you the name of these vertices. तो first हम इनको name देंगे, ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि let my vertices are 5 comma minus 2, 5 comma 4 and C is minus 4 comma 1. अब कहता है these are 3 points. 3 points हैं हमारे पास with vertices. तो कह रहे इनसे जो ट्राइंगल बन रही है वो बताएं इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो let's suppose I have this figure. I don't know about this triangle. So this is my 5 comma minus 2 A, B and this is C. Okay, let's suppose this is triangle और ये triangle क्या है इन points से बन रही है, right? These are the given points. अब क्या कहता है the points with vertices this are vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle. So now students you will find that which type of this triangle is. Means is this an equilateral triangle or an isosceles triangle. For finding the type of triangle you just you have to do to find its length. तो आप क्या करेंगे AB length find out करेंगे, right? AB by using distance formula. Number 2 BC and number 3 आप CA और AC. You can say CA or you can say AC. ठीक है, दोनों तरह से कह सकते हैं. First you will find these 3 lengths and then by judging these 3 lengths or by observing these 3 lengths you can say about the type of triangle. You know equilateral triangle में क्या होगा, if all these 3 lengths are equal then the triangle is an equilateral triangle, and if any of these 2 lengths are equal, you know isosceles triangle in which 2 sides are equal, कोई भी 2 sides equal होंगी then the triangle will be your isosceles triangle. So without finding these lengths you cannot say whether this is an equilateral triangle or an isosceles triangle. ठीक है, so first I am going to find lengths. कौन कौन सी lengths निकालनी है, मैंने AB, BC and C मैंने ये lengths निकालनी है by using distance formula. तो distance formula आप सबको बहुत अच्छे से आ गया है I hope. तो हम वही काम करते हैं. First मैं ले लेती हूँ AB, डिस्टेंस फार्मूला लिख लें प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब नाउ स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती हैं तो हम वही ले लेते हैं. पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं a और b के. a इज़ 5 comma minus 2 and b is 5 comma 4. दिस इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ a and b. इनके हमने पॉइंट्स हेयर. What is x1? x1 है स्टूडेंट्स मेरे पास दिस वन 5. इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x1 और y1 है -2 एंड x2 ये b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 एंड y2 मेरे पास आ जाएगा 4. ठीक है, आप इस तरह से कर लें अगर आपको अभी भी डायरेक्ट अप्लाई करना नहीं आया. सो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेती हूँ. डिस्टेंस फार्मूला AB लेंथ यस क्या था स्टूडेंट्स x2 माइनस x1. आपने x2 आई हैव x2 x1 आपने जस्ट इसमें से माइनस कर देना है. 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. देखिए ये y2 की वैल्यू है ये y1 की, तो 4 माइनस इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर. AB 0 4 प्लस 2 होल स्क्वायर and 6 whole square
So my first length is 6 cancel with this square cancel with this square root, so 6. So this is my first length and name this length as 1. ओके इसको नेम दे दें, हम क्या नेम दे देते हैं, 1 दे देते हैं. अब ये मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ, लेंथ ऑफ ए बी इज़ 6. आई होप स्टूडेंट्स से क्लियर हुआ होगा कि आपने बताना है ट्राइंगल की टाइप. सो यू विल फाइंड ए बी सी एंड सी ए. अभी फर्स्ट मैंने ए बी फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ मैंने इनको सेपरेटली करके लिख लिया एंड देन I got the length of first side, that is AB is equals to 6. Now second side हम find out करते हैं, ठीक है. Second side, now oops yes you can write with blue marker, ठीक है. आप second length को blue marker से लिख दें, BC second length ऐसे लिख दें ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि आपने करना क्या है और आप अभी क्या कर रहे हैं. y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि हम यू नेम्स दे दें. अच्छा नाउ बी सी, आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी स्टूडेंट्स मैं बुक से देख लेती हूँ. बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 5,4 और यहाँ पर जो सी आ रहा है, जो सी इंक्लूड है, सी के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास -4,1. सो हेयर ये x1, दिस इज़ x1 5, y1 4 and c के coordinates will make x2 y2, x2 -4 and y2 is equals to 1. therefore students BC लेंथ अप्लाई करते हैं, लेंथ मेरे पास आ जाएगी x2 minus x1, x2 minus x1 just -4 -5, this is x2, this is x1 प्लस y2 माइनस y1. ठीक है, जस्ट आपने यू हैव x1 x2 y1 y2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल मेक x1 y1 एंड सेकेंड x2 y2. वैल्यूज़ आप लिख लें और फिर वैल्यूज़ पुट कर लें. ठीक है, वेरी सिंपल. अदरवाइज़ डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट स्टिल अगर डायरेक्ट नहीं आया स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि समटाइम्स सेक्शन सी में 8 मार्क्स का भी इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ जाता है. तो सेफ़र साइड पे रहने के लिए स्टूडेंट्स आप बेशक इस तरह से कर लें. ठीक है, डायरेक्ट ये ना अप्लाई करें और रॉन्ग कर लें. प्लस -3 होल स्क्वायर. सो BC इज़ इक्वल्स टू 81 प्लस 9. यू नो नेगेटिव हैविंग इवन पार, ये मैंने अपनी बहुत प्रीवियस वीडियो में बार कहा है. इफ़ नेगेटिव हैविंग इवन पार तो प्लस ही आता है. और यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. ठीक है, -9 का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लें क्या आता है, कि आपके मार्क्स एटलीस्ट 8 मार्क्स इतने आसान से क्वेश्चन में ना कटें. सो BC इज़ इक्वल्स टू 81 प्लस 9 मेरे पास आ जाएगा 90. ठीक है, नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन ऐसे 2 लिख लेती हूँ, 2. Again last length students, last length is CA and first write formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा. देन नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑफ राइटिंग कोऑर्डिनेट्स. सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे, बुक पे मैं देख लेती हूँ. सी वॉज -4 1 एंड ए इज़ ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या थे, 5, -2. ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ यूज़ हो रही होती है लेंथ के एंड पॉइंट सी और ए, उनके कोऑर्डिनेट्स अब उन्हें बता दें. हेयर x1 इज़ इक्वल्स टू x1, ऑब्वियसली सी पहले आ रहा है तो ये x1 y1 होगा, -4 एंड y1 इज़ इक्वल्स टू 1 एंड x2 ए बाद में आ रहा है एंड y2 -2. तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ साइड पे लिख लूँ BC की लेंथ मेरे पास थी √90. वैल्यूज पुट कर लें. देयरफॉर CA लेंथ इज़ इक्वल्स टू, जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर, x2 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या थी, -4 होल स्क्वायर प्लस y2
-2 -1, ठीक है। जस्ट हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई किया, सॉरी वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। फार्मूले में वैल्यूज़ तो ये आ जाएगा 9 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर एंड अगेन सी ए इज़ इक्वल्स टू 81 प्लस 9, सो सी ए इज़ इक्वल्स टू 90, ठीक है। मेरे पास थर्ड लेंथ भी आ गई, दिस नेम इट एज 3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम 1 2 एंड 3। मेरा रेज हो चुका है ये पोर्शन, तो आपके पास नोटबुक पे लिखा हुआ होगा, तो आप कंपेयर भी वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं जस्ट ये लिखूँगी फ्रॉम 1 एंड कौन कौन सी हमारी इक्वल आ रही थी, 2, फ्रॉम 2 एंड 3। तो 2 मेरी पास इक्वेशन आ रही थी बी सी। देखिए मैं वैसे ज़बानी बता देती हूँ आपको यहाँ पर लेके मैं, लेकिन आप स्टूडेंट्स ने ये लिखना नहीं है। देखिए ए बी 6 थी, बी सी 90 एंड सी ए इज़ अगेन 90। दिस वॉज 1, दिस वॉज 2 एंड दिस वॉज 3। तो मैं क्या, आपने जब ऑब्ज़र्व किया, यू हैव ऑन योर नोटबुक ये भी वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, तो ऑब्ज़र्व किया फ्रॉम 2 एंड 3 बी सी इज़ इक्वल्स टू सी ए, ये आप लिखेंगे, ठीक है। ये सब मैंने आपको जो यहाँ लिखा था ऑब्ज़र्व करने के बताया। फ्रॉम 2 एंड 3 लेंथ ऑफ बी सी इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सी ए, 2 लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है। अंडर रूट स्क्वायर रूट 90 इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 90। इसको सॉल्व कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं, हमने आगे कोई फर्दर काम नहीं करना, तो एज इट इज़ रहने दें। स्क्वायर रूट 90 इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 90, दीज 2 लेंथ्स आर इक्वल। सो स्टूडेंट्स वो कौन सी ट्राइंगल होती है इन विच यू हैव 2 साइड्स आर इक्वल, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो येस, द given points form an isosceles triangle, ठीक है। वाई आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल, दैट इज़ वाई ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से जो ट्राइंगल बनेगी एंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको रीड करके समझ आ गया होगा विदाउट रटा। Okay, students, question number 2 is show whether or not the points with vertices this and this form a square. You know square has 4 sides, ठीक है। अब उन्होंने ये points दिए हुए हैं और कह रहे हैं आप बताएं whether these points are or not the vertices of square, ठीक है। तो रफ से फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ए बी सी डी, एक समरी हम बता देती हूँ कि हमने करना क्या है। दे हैव गिवन यू पॉइंट्स, यहाँ उनके नेम्स नहीं दिए हुए ऑब्वियसली। इन सोल्यूशन फर्स्ट आई विल गिव देम नेम दैट लेट ए इज़ -1 1, बी इज़ 5 4, सी इज़ 2 -2 एंड डी इज़ -4 1। ये मैंने नेम दे दिया, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम देने के बाद जो है हमने क्या किया, यहाँ देखें, आपने लेंथ्स फाइंड आउट करनी है, साइड्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यू विल फाइंड ए बी, यू विल फाइंड, यहाँ पर लिख लेती हूँ, ए बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन यू विल फाइंड बी सी, ओके, देन यू विल फाइंड डी सी एंड देन यू विल फाइंड ए डी, और यू कैन से डी ए, ठीक है, दोनों हम कर सकते हैं। So students, you will find these 4 lengths of the sides, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, यू नो स्क्वायर की व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो इनकी लेंथ जो है वो इफ़ दे आर इक्वल, इफ़ लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, देन ऑब्वियसली दीज पॉइंट्स विल फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है। और अगर इनमें से कोई एक लेंथ भी इक्वल नहीं है तो ये वर्टिसेस स्क्वायर के नहीं हैं। तो ये अब हमने करना है। सो दिस इज़ आई एम गोइंग टू डू। चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी। तो जैसे मैंने कहा था आप लेंथ को लिख लिया करें विद ब्लू मार्कर, तो ब्लू मार्कर से हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हमने कौन कौन सी लेंथ्स फाइंड आउट करनी है। सो ए बी हम ले लेते हैं
x2 डिस्टेंस फार्मूला, ऑब्वियसली लेंथ्स यू विल फाइंड बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ए भी हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ राइट वर्टिसेस। ए के क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, -1 1 एंड बी हमारे पास क्या आ रहा है 5 4, ये जो हमने नेम दिए हुए थे। देन हेयर नेक्स्ट स्टेप इज़ x1, उनको नेम दे देते हैं। ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी x1 y1, और जो नेक्स्ट पे आ रहा होता है उसको x2 y2 ले लिया करें। x1 क्या है -1 एंड y1 1 आ रहा है, ठीक है। x1 इज़ -1 y1। देन x2 इसके कोऑर्डिनेट्स 5 एंड y2 क्या आ जाएगा 4। x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ्स निकाल लेते हैं हम सारी। सो ए बी इज़ इक्वल्स टू यस x2 5 माइनस x1 क्या था -1, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँ, ठीक है। दिस इज़ x2 5 माइनस एंड देन -1, ये जो आपके पास x1 है -1, तो उसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है, प्लस y2 4 माइनस 1 होल स्क्वायर 5 माइनस माइनस प्लस 1 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर 5 प्लस 1 मेरे पास क्या आ रहा है 6 3 स्क्वायर 9। सो ए बी इज इक्वल्स टू 36 प्लस 9। तो ए बी मेरे पास क्या आ रहा है 36 प्लस 9 स्टूडेंट्स, इट विल बी 45, ठीक है 45। नेम दिस लेंथ एज 1 बिकॉज एट द एंड यू विल ऑब्जर्व, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड पे भी लिख लेती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट लेंथ ए बी क्या आ रही थी, फर्स्ट लेंथ इज़ 45। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो जो हमने स्क्वायर बनाया था इफ़ यू रिमेंबर ए बी सी डी। तो अभी हमने ए बी लेंथ फाइंड आउट की है। नाउ वी विल फाइंड बी सी, सेकेंड लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलें बी सी लिख लें विद ब्लू मार्कर, डिस्टेंस फार्मूला भी लिख लें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ यू विल राइट कोऑर्डिनेट ऑफ b, बजाय कि यहाँ से देख लें समटाइम्स रॉन्ग हो जाते हैं, आप यहाँ सेपरेटली लिख लिया करें, ठीक है। 5 4 और c क्या आ रहा है 2 -2। हेयर बता दें उन्हें x1 और x2 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको x1 और y1 कहते हैं, ठीक है। x1 5 y1 4 एंड सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है x2 2 एंड y2 -2, ये आ गया, ठीक है। अप्लाई करें जी डिस्टेंस फार्मूला BC इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेंथ्स फाइंड आउट कर लेते हैं हम। वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या थी 2। ओह मैंने दोबारा फार्मूला लिख लिया, नो नीड टू राइट इट अगेन, जस्ट पुट द वैल्यूज़ इन, को भी नेम दे दें या ना भी दें, आप वैल्यू पुट कर लें। 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या था -2 एंड माइनस y1 क्या था 4 -3 होल स्क्वायर -6 होल स्क्वायर, you 9 plus -6 36, you know negative having even power तो आपके पास +9 आएगा। सो अगेन BC इज़ आल्सो इक्वल्स टू 45। इसको भी हम नेम दे देते हैं 2, नंबर्स का ले लेती हूँ 2, यहाँ साइड पे भी मैं लिख लेती हूँ। BC मेरे पास आ रही थी √45। नाउ स्टूडेंट्स टर्न ऑफ थर्ड लेंथ दैट इज़ CA, ठीक है। CA हम क्यों निकाल रहे हैं, देखिए हमारे पास इफ़ आई हैव दिस स्क्वायर, दिस इज़ ABCD, और स्टूडेंट्स से हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है। ये नहीं होता कि आप AB यहाँ लिखें एंड CD यहाँ लिख दें, ठीक है, ये रॉन्ग होगा। आपने हमेशा इसको या तो क्लॉकवाइज लिख रही हैं तो उस तरह से लिखी है, एंटी क्लॉकवाइज ले रही हैं, मतलब आपने B के
राइट टॉप पे आप सी लेंगे, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पर डी लिख लें और यहाँ पर ए सी लिख लें, नो। सो ए बी सी डी, देखिए हमने ए बी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया। नाउ द टर्न ऑफ डी सी, ठीक है, या सी डी लिख लें। सो फर्स्ट यू विल राइट फॉर्मूला सी डी की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी लिख लें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 2 -2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर -4 1, ठीक है। सेम हमने बस यही प्रोसेस करना है सब में कि हमने उनके कोऑर्डिनेट्स लिखते जाना है, राइट। और जी तो हेयर ये x1 2 और y1 -2, d के कोऑर्डिनेट्स x2 -4 और y2 1, ठीक है। फॉर्मूला मैं अब नहीं लिख रही, लास्ट टाइम भी मैंने लिख लिया था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x2 - x1, x2 इज़ -4 माइनस x1 इज़ 2 प्लस y2 1 माइनस फॉर्मूले का एंड द नंबर इज़ आल्सो नेगेटिव -2. So CD is equals to -6 whole square, 1 minus minus plus, oops. So CD is equals to -6 square 36 plus 3 square, 1 plus 2 3, ठीक है, 1 plus 2 3, 3 square 9. So CD is again 45, ठीक है। इसको हम नेम दे देते हैं थर्ड। So CD is also 45, ठीक है। आप स्टूडेंट्स फिगर को एक ही बार रफ पे फ्री हैंड से बना दें, ठीक है, रूलर से नीट सी करके छोटा सा स्क्वायर बना लें फ्री हैंड से लाइक दिस, और फिर यू कैन इजीली गेस कि अभी हमने क्या किया और क्या कर लिया। सो दिस इज़ ए बी, बी सी भी हो गया, सी डी भी हो गया। नाउ द थर्ड लेंथ डी ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डी ए लिख लें फॉर्मूला, लास्ट लेंथ हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ डी ए फॉर बाय यूजिंग वी विल फाइंड लेंथ ऑफ डी ए दिस साइड, लास्ट फोर्थ साइड बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब वही सेम स्टेप्स के वर्टिसेस ऑफ डी, वर्टिसेस डी के क्या थे -4 1 एंड ए के वर्टिसेस थे -1 1, ठीक है। हेयर x1 इज़ इक्वल्स टू -4 एंड y1 इज़ इक्वल्स टू 1, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब यहाँ ए के x2 -1 एंड y2 1, जो बाद में आ रहा होता है वो x2 y2 है और जो पहले होता है वो x1 y1 है। बाय यूजिंग फॉर्मूला वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 -1, x2 की वैल्यू क्या थी -1, देन माइनस x1 -4 प्लस y2 1 -1 होल स्क्वायर, -1 माइनस प्लस 4 प्लस 0 होल स्क्वायर। So DA is equals to 3 square, DA is equals to, मेरे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट 3. So length of DA is equals to, name it as 4. Now students you will observe from 1 2 3 and 4, ठीक है। क्या ऑब्ज़र्व करेंगे आप स्टूडेंट्स, आपकी नोटबुक पे लिखा हुआ होगा, आपके ये लिखा होगा ए, ये आप स्टूडेंट्स ने लिखना नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एंड कैसे करना है। ए बी आपके पास क्या लेंथ आ रही थी, ए बी वॉज स्क्वायर रूट 45, बी सी लेंथ थी आपके पास स्क्वायर रूट 45, सी डी लेंथ थी 45 स्क्वायर रूट एंड लास्ट डी ए लेंथ आप स्टूडेंट्स के पास आ रही थी 3। तो आप कैसे लिखेंगे आफ्टर दिस स्टेप, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशंस के रिजल्ट्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी ऑन योर नोटबुक यू हैव। तो हम एंड कैसे लिखेंगे आफ्टर इक्वेशन नंबर 4, यू विल राइट फ्रॉम 1 2
3 and 4th, क्या आपने ऑब्जर्व किया दैट लेंथ ऑफ ए बी it is equals to length of BC which is equals to length of CD and which is not equal to length of DA. ठीक है, वैल्यूज़ पे पुट करके बता सकते हैं कि ये 45, 45, 45 and it is not equals to 3. So आप एंड पे क्या लिखेंगे, therefore the given points do not form a square, क्योंकि स्टूडेंट्स यू नो फॉर स्क्वायर ऑल साइड्स शुड बी इक्वल इन लेंथ, बट हमारे पास 3 लेंथ्स तो इक्वल आ रही थी, 4th लेंथ इक्वल नहीं आ रही थी, दैट इज़ वाई दीज गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर. सो this is the way students you can do your this question number 2. I hope students ये आपको समझ आया होगा कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, अपना माइंड बनाएं, एक फ्री हैंड से रफ फिगर बनाएं और उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन पे जाएं. इक्विलेटरल में यू हैव टू फाइंड लेंथ्स एंड ऑल लेंथ शुड बी इक्वल. आइसोसेलेस में स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 साइड्स शुड बी इक्वल इन लेंथ. ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर में क्या है, आपने लेंथ्स निकालनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. अगेन एंड अगेन डिस्टेंस फार्मूला इन दिस एक्सरसाइज वी विल यूज़ फॉर फाइंडिंग लेंथ्स. और फिर उसके बाद इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी ए स्क्वायर. नहीं है तो हमारे पास ये स्क्वायर नहीं होगा. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 1 and 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी. सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.